बहुत सारे यंग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपना रेज्यूमे बनाना। तो रेज्यूमे में सबसे बड़ी गलती लोग ये क्या करते हैं, दे विल राइट मैं एक्स था एट वाई कंपनी एंड ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था। हर एक इंसान जो वो जॉब करता है वो वही लिखेगा। यू विल ओनली स्टैंड आउट इफ यू डिस्क्राइब व्हाट डिड यू अचीव। सबसे घटिया रेज्यूमे वो होता है जो एक जॉब एप्लीकेशन के साथ बदलता नहीं है। हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको एक यूनिक नया रेज्यूमे बनाना है जो उस जॉब एप्लीकेशन के लिए ही बना है। उसमें वो वर्ड्स यूज करे गए हैं जो रिक्रूटर्स को पसंद आएंगे, उसमें वो स्किल्स रिप्रेजेंट करे गए हैं जो रिक्रूटर्स के लिए जरूरी है। Some people also time when they send their follow-ups or their resume. LinkedIn is a great example of that. Only last week I believe I got an email from somebody. He's a content creator on LinkedIn. He's like मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे मंडे के पोस्ट ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते हैं, आपने भी देखा है क्या एल्गोरिदम कुछ चेंज हो गया है, कुछ ही हो गया है। मतलब नहीं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। LinkedIn is a social media platform और a professional platform for working professionals mostly. जब सैटरडे संडे के बाद वो मंडे को आते हैं, उनकी पहली फितरत ये थोड़ी होगी कि LinkedIn चेक करेंगे। वो पहले अपने काम पे फोकस करेंगे ना। मंडे को उनका फोकस होगा काम क्लियर करो, फ्राइडे को वीकेंड की मस्ती है, चिल है, वो वापस नहीं कर रहे होंगे। सैटरडे संडे को दे वांट नथिंग टू डू विद वर्क, सो द पीक ऑफ LinkedIn इज एक्चुअली वेडनेसडे। Welcome to Men's Locker Room, Ankur. How are you today? I am doing very well. Thank you for having me. Yes, absolutely. Well, you've just written an epic book. So, let's start with the basic question. Why did you decide to write this book? मैं अभी तक 3 किताबें लिख चुका हूँ, ये चौथी है। And when I thought of writing my first book, मुझे लगा था कि एक ही किताब लिखेंगे, जिंदगी में एक ही किताब होनी चाहिए। And I would imagine you would relate to that one flagship book that you write. But my publisher, Chiki Sarkar, who's the editor and founder of Juggernaut Books, my first publishing house, she's like कि नहीं, अगर आप इतने सारे videos हर साल publish करते हैं, then a book should also become a regular affair. That's how you think of yourself as a content writer. क्योंकि मैं एक full time author नहीं हूँ. I love creating content as such. So then I thought, okay, if I have to write several books, and let's think about 5 to begin with, वो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें होंगी which I would want to cover. And very clearly it was career, money, relationships. These are the 3 things that frankly define हर एक ज़िंदगी में कितना success, कितनी खुशी, कितना गम वगैरह होता है. So Do Epic Shit came first and then Get Epic Shit Done, which were 2 placeholders as such. फिर last year money, this year career, next year relationships, and that's when I'll be done with the 5 books that I at least have as part of my plan so far. Then you'll have an epic collection. हाँ, एक epic. My goal is कि जब कोई 20 साल का हो जाएगा ना, तो उनके ये 5 किताबें भेंट मिलेगी कि इन 5 किताबों से आपका 20s जो है ना वो संभल जाएगा. So you'll have everything covered, and फिर बाद में जब होगा तो you'll figure out. Right. और अभी 20s की जैसे बात कर रहे थे, so I'm sure that you must also talk to a lot of young guys and young people struggling with building a career, right? For them to like landing the first job is the biggest struggle of their life. So in all your conversations that you must have had for research purposes also, what do you think are the the top funnel problems for young kids when they're trying to look for a job? Oh, the biggest one is I don't know what I should be doing in life. कोई आइडिया नहीं है मुझे, सिर्फ एक थोपी गई है चीज़, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। पर्पस तो बहुत ही दूर की बात है। इट्स वेरी डेफिनेटिव। इंजीनियर, डॉक्टर, UPSC, लॉयर, CA, यही कुछ जरिए हैं। Of course the world has become slightly better now, but parents are still adopting to new age jobs such as a podcaster or a video editor or an influencer, an author, a journalist, a singer, a writer, and all of those. थोड़ा acceptance आ गया, but I would say 95% is still just the top tier foundational things. And people are like, मुझे बोला गया था कि इंजीनियर बन जाओ और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, but I have no joy in it. I don't feel attached to it. And मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मैं और क्या कर सकता हूँ. So there is surprisingly this conundrum where we are living in a world जहाँ information इतना सारा है कि आप सदियों बिता सकते हो और फिर भी आपको सब कुछ नहीं मिलेगा. एंड उसके चलते डिसीजन मेकिंग पुअरर हो गई है, बेटर नहीं हुई है. पीपल आर मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड कि उनको क्या करना चाहिए. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन आई गेट अराउंड करियर इज आई एम डूइंग दिस, आई डोंट एंजॉय दिस, but I don't know what I could do in life. I have no idea of how to think about that. And I think that is a huge problem to solve, which at least in this book and in general in my content I've tried to. And एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी शायद कम होती है अगर हमारे समाज में ना डेटिंग का कल्चर होता है.
Because we don't have a dating culture. We Our don't. culture is sorry. We don't. Wait, you're living in a cocoon and in this fancy Gurgaon setting in Vakhara, जहाँ हमें लगता है कि हाँ Tinder and Bumble are the things of the world. But no, it's funny enough. You point your surprise. मैंने कल I think कुणाल शाह था शायद. I'm not sure. उन्होंने ट्वीट किया था कल that the last marriage you attended, was it a love marriage or an arranged marriage? And this is Twitter, right? So you would imagine the top tier 1% and Yeah. blah 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 blah. I think it was 70% arranged. And only about 30% love. Love marriage. So we still believe कि हाँ बहुत सारा love relationships and adult decision making होता है पर नहीं होता. But I deviate. The point that I was trying to make is dating allows you to uncover your own self. कि मुझे किस टाइप के लोग पसंद हैं, मैं किन लोगों के साथ ज़्यादा जेल करता हूँ, मैं किन लोगों से ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर पाता हूँ, किन लोगों के साथ मुझे जेन्युइनली खुशी नहीं मिलती है, मैं किस तरह का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनता हूँ, हाउ डू आई ट्रीट माई पार्टनर एंड सो ऑन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी टू अंडरटेक टू डिसाइड कि आप किस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू. करियर शुड ऑल्सो बी द सेम वे. हमें नहीं पता है कि इंजीनियर बनना क्या होता है, हमें नहीं पता है डॉक्टर बनना क्या होता है, हमें सिर्फ किताबी नॉलेज है विच इज़ लाइक हमें बोला जाएगा कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बट इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी व्हेन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस लव, बीइंग इन अ रिलेशनशिप. द सेम वे आई विश वी हैड अ वे ऑफ dating careers. And I often tell people, date careers. Don't commit to a career. And how do you date careers? You date career because the world has made it easy for you to do that. आप online courses लीजिए. Let's say you want to become a digital marketer. You have no idea what that means. You have no idea whether it will interest you. आप online courses लीजिए. आप कोई forums join करिए. आप Reddit पे digital marketing का group join कर लीजिए. Facebook के group join करिए. Internships करिए. Projects करिए. And at the end of a 30-day very focused exercise, ask yourself, did you enjoy it? Did you like what you read? Did you like what you experienced? Did you like the kind of people that you hang out with? Did you like the kind of work that you did? And if the answer is no, move on to the next one. But keep doing these 30-day experiments of dating careers till you perhaps figure out कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसमें शायद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. And if you like it, then extend it. So in a period of 2 to 3 years, while having a day job, by the way, इसके लिए बिल्कुल भी वेले होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी बेरोजगार होने की ज़रूरत नहीं है. This is something that you can do with your day job. Maintain that day job, it pays for your bills, and then you just have this dating culture during your nights, your weekends, your holidays, which allows you over 2 to 3 year period to uncover कि कौन सा career शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है. That's a very unique and interesting, perspective, I must say. It's like, Yeah. But जैसे for example, day jobs की बात करते हैं. राइट अपना करियर या फिर अपना पैशन तो ढूंढना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, बट बहुत सारे यंग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपना रेज्यूमे बनाना. राइट, आई मीन जस्ट cracking the code to making a resume that somebody will click and open and spend more than 2 seconds is a task. Right? So do you have like some tips, some tricks, being in a position where you must see a lot of resumes day to day? No, absolutely. So what we did, and it's amazing that you asked this question. हमें ये realize हुआ कि जब भी हम career के बारे में बात करते हैं बहुत ज्ञान होता है, लेकिन actionables बहुत कम होते हैं. कि ये जैसे resume, it's a very simple thing that it's a very practical problem. Exactly, like LinkedIn प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, एक कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं, रेजिग्नेशन ईमेल्स कैसे लिखते हैं, इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट, फीडबैक कैसे मांगते हैं, अपने आप को अपनी ग्रोथ जर्नी को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं. सो वन थिंग दैट वी वांटेड टू डू पर्टिकुलरली फॉर दिस बुक, एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, इज एट द एंड ऑफ द बुक देयर आर 15 QR codes which lead people to 15 templates that we believe cover almost everything that every career should have. तो resume template है उसके अंदर, LinkedIn का प्रोफाइल कैसे बनता है वो है, आप अपने आप को एनालाइज कैसे कर सकते हो वो है, फीडबैक कैसे ले सकते हो वो है, कोल्ड ईमेल कैसे लिख सकते हो, so on and so forth, so that becomes actionable after the ज्ञान that the book has to offer. तो resume में सबसे बड़ी गलती लोग ये क्या करते हैं, they will write कि मैं X था at Y company 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, एंड ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था, मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था. हर एक इंसान जो वो जॉब करता है वो वही लिखेगा. सो यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट इफ यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वर सपोज टू डू. यू विल ओनली स्टैंड आउट इफ यू डिस्क्राइब व्हाट डिड यू अचीव, नॉट कि आपने काम क्या किया, उस काम से हासिल क्या हुआ. दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट. सो इमेजिन इफ यू हैव टू राइट एन रेज्यूमे, you could have one approach, which is, hey, I was a host of this really famous, successful, well-received podcast.
Okay, every podcaster will write the same thing. Yeah. But if you were to say, during my stint, these are the number of views that I garnered. During my stint, we went from X followers on Men's XP to Y followers on Men's XP. During this, I met these many individuals who represent the top tier of what their streams were and so on and so forth. You suddenly stand out क्योंकि वो कितने लोगों ने किया होगा, वो हासिल कितने लोगों ने किया होगा. That is where you become at least different from the crowd. That's number one. Number two, भेड़चाल. भेड़चाल होता है, I don't know if you've gone to business school or not, लेकिन business school में जैसे हर एक स्टूडेंट को ना एक टेम्पलेट दिया जाता है एंड उनको बोला जाता है इस टेम्पलेट से हटना नहीं है. क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, वो रिक्रूटर के लिए अच्छा है. रिक्रूटर क्या करता है, उनको पता है कि इस रेज्यूमे के टॉप राइट पे देखोगे तो नंबर दिख जाएंगे, टॉप लेफ्ट पे देखोगे तो नाम दिख जाएगा, बॉटम लेफ्ट पे देखोगे तो Education दिख बहुत जाएगी. टेम्पलेटाइज्ड एक व्यू होता है. तो दे लाइक चक 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 ऐसे ऐसे करेंगे एंड सबका दिख जाएगा सब कुछ. इट्स ग्रेट फॉर अ रिक्रूटर टू शॉर्ट लिस्ट, इट्स टेरेबल फॉर अ स्टूडेंट क्योंकि उनको कोई जरिया नहीं मिलता है स्टैंड आउट करने का. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एट ISB, माय बिजनेस स्कूल वेयर आई डिड माय MBA, आई वाज गिवन अ टेम्पलेट एंड लाइक मैं तो ये टेम्पलेट नहीं एक्सेप्ट करूँगा, चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो जाए. तो आई क्रिएटेड माई ओन रेज्यूमे टेम्पलेट विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. इट वॉज अ 1-pager जिसमें मैंने पोस्ट-इट्स जो होते हैं ना, उनकी फोटोग्राफ गूगल से डाउनलोड करी और उसको पेज पे हर जगह डाल दिया और फिर उस पोस्ट-इट पे टेक्स्ट लिखा. सो इट फेल्ट लाइक एक A4 साइज शीट है जिस पे पोस्ट-इट्स लगे हुए हैं एंड दोज पोस्ट-इट्स वर कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या उखाड़ा है, हाईलाइट्स कि मैंने ये पढ़ाई करी है, यहाँ ये किया था वगैरह वगैरह. बट सडनली व्हेन रिक्रूटर्स 4 करोड़ रेज्यूमे देख रहे होंगे और एक रेज्यूमे अलग से होगा, दे विल एब्सोल्युटली नोटिस इट. सो यू हैव टू डू समथिंग इन दैट ब्रेक्स द टेम्पलेट. इस दुनिया को एक और टेम्पलेट नहीं चाहिए, इस दुनिया को एक और रेबल चाहिए एंड यू हैव टू बिकम दैट रेबल. एंड थर्ड, फार मोर इम्पॉर्टेंट, जज्बाती मत होइएगा. मैंने 3री कक्षा में उस पोएम रेसिटेशन कॉन्टेस्ट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. जैक एंड जिल की नर्सरी राइम बोलते हुए किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि जो इंसान आपको नौकरी देना चाहता है ना, आपको इवेल्युएट कर रहा है, उनके लिए ज़रूरी क्या है. तो प्लीज़ उन चीज़ों पे फोकस करिए. एंड दैट्स व्हाई आई से कि सबसे घटिया रेज्यूमे वो होता है जो एक जॉब एप्लीकेशन के साथ बदलता नहीं है. हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको एक यूनिक नया रेज्यूमे बनाना है जो उस जॉब एप्लीकेशन के लिए ही बना है. उसमें वो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं जो रिक्रूटर्स को पसंद आएंगे, उसमें वो स्किल्स रिप्रेजेंट करे गए हैं जो रिक्रूटर्स के लिए ज़रूरी है, उसमें वो रिप्रेजेंटेशन है जो रिक्रूटर को एक्साइट करेगी. यू हैव टू मेक इट कस्टमाइज्ड फॉर एवरी सबमिशन. जब आप ये 3 चीज़ें अपने जहन में रख लेते हैं कि you have to focus on your achievements, you have to stand out in the representation of the resume and you have to customize it to every job profile, you will automatically shine. It will still not be 100% guaranteed कि आपको interview call मिल जाएगा, but your chances of getting that shortlist are far higher. And you know, मैं आपसे बात करके ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ that sometimes standing out is so important. For example, recently I was sitting with Ritesh Agarwal and Kunal Behel, right? And we were discussing about the same thing that, you know, how does a 20-year-old someone in an organization, competitive workforce, how does that person stand out? And they said the same thing. They said कि यार, to stand out, one of the biggest qualities that, you know, most people don't put a premium on is कि be curious. Yes. Ask questions. Don't be कि अच्छा नहीं बोल दिया चुपचाप कर दिया, भेड़चाल में ये भी कर दिया, वो assignment भी finish कर दिया. कहते be curious. Ask questions. There's nothing like a stupid question. Exactly. Right? There might be a stupid answer, but there's nothing like a stupid question. So, you know, this makes complete sense in that regard. Absolutely. So agree with that. Yeah. And, you know, chalo, this was how to navigate the conundrum of, you know, like making a great resume. Now, it's funny that you were talking about dating. People are still figuring out, young boys and young girls are still figuring out how to, you know, like meander through dating apps, right? But when it comes to career, the one place where they need to learn how to navigate is LinkedIn, yes. right? And यही नहीं समझ आता कि वो पहला मैसेज जब HR को भेजते हैं, बाई चांस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया या देख लिया, what should be that first message be to an HR? You know, the first message cannot be, do you have a job? The first message cannot be, ये रहा मेरा resume, what are the opportunities? Because that's so transactional कि आपको
ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, दे रिसीव सच मैसेजेस डाइम अ डजन एवरी सिंगल डे. उनका काम ही वही है ये सब रिसीव करना. द मैसेज हैज़ टू बी समथिंग जिससे उनको ऐसा लगेगा ये कुछ तो अलग था. नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दैट. आई टेल यू व्हाट माय अप्रोच यूजुअली इज. मेहनत करना इतना इंसेनली आसान है, लेकिन इतने कम लोग करते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, आपको कुछ उस इंसान के बारे में पता चल जाएगा जो कि शायद हर एक इंसान को पता हो, बट कोई उसके बारे में जिक्र नहीं करता. इफ़ यू टू फॉर एग्जाम्पल गो टू द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड चेक कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, चेक वो कौन से कॉलेज गए हैं, चेक वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं, चेक उन्होंने कौन सी फील्ड में पढ़ाई करी है, चेक कि उन्होंने कुछ और ऐसा लिखा हुआ है जो मे बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल टॉक अबाउट, मे बी देयर हॉबीज, मे बी देयर इंटरेस्ट. क्या वो किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड है जिनसे आप भी कनेक्टेड हैं, एंड यू विल सी कि उन्होंने उनके साथ कुछ काम किया है, आपने उनके साथ काम किया है. समथिंग दैट you, when they've accepted that request, you reply with, which is like, hey, I noticed that you've been working at Men's XP and you're this host of this podcast, and I've seen so many of those podcasts and I didn't even realize कि आप वही थे या आप वही हैं. Or it's like, oh, you went to this college and that's so cool because I was during that same time in that same college and it's just crazy that we overlapped and we didn't even know of each other and now we do. It just makes you human. And you have to recognize कि सामने वाला इंसान भी इंसान ही है. वो एक रोबोट नहीं है, वो एक मशीन नहीं है, वो एक रिज्यूमे स्कैन करने वाला एंटिटी नहीं है, वो भी इमोशनल इंसान है. तो यू हैव टू डू समथिंग दैट बिकम्स डीपली पर्सनल सो दैट इट जस्ट स्टैंड्स आउट एंड यू गेट देम टू रिएक्ट, एक्नॉलेज. अभी जॉब की बात नहीं हुई है, अभी आपका रेज्यूमे नहीं पहुंचा गया है, अभी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है. आप सिर्फ और सिर्फ उनको आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक तरीके से एक अच्छा रीज़न दे रहे हैं. अच्छा रीज़न, उकसा नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, चेप नहीं हो रहे हैं, क्रीपी नहीं हो रहे हैं, प्रोवोक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एजिटेट नहीं कर रहे हैं, ट्रोल नहीं कर रहे हैं. लाइक यू आर बीइंग वेरी वेरी नाइस. दैट फॉर मी इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. वन गूगल सर्च of a person's name just makes so much of difference. I'll give you a simple example, and it's crazy how this works. Because I'm a public figure, very sweetly, there will be people who will send their wedding invitations to me. कि मेरी शादी हो रही है, and it'll be lovely if you come. I don't know them, I will not go. But उन्होंने वो wedding invitation भेजा हुआ है. Let's assume that it comes from a lady called Neha or a guy called Amit, whatever. I have two choices. I could be like, thank you so much, Neha. It's lovely. Wish you a wonderful married life. I'm sorry I won't be able to make it. But here is what I do. I'll click on the wedding invitation and I'll see who is she getting married to. And let's say his name is Gaurav, which was not stated in the email. Right. And I will simply reply saying, hey Neha, thank you so much for the invitation. I wish you and Gaurav a wonderful married life. And I'm sorry I won't be able to make it. This ridiculously simple thing makes all the difference. A little touch of personalization. It's just that. It's just 2 सेकंड लगे मेरी जिंदगी के. लेकिन वो छोटी सी चीज़ उनके जहन में हमेशा बस जाएगी कि इस इंसान को ये पता है कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है. When I just stated my name. And I just said that I'm getting married. It's the same thing. One Google search on that recruiter manager, hiring manager will tell you so much. उनके Instagram profile पे कुछ दिख जाएगा, उनके Facebook पे कुछ दिख जाएगा. Something that is again not creepy. Nothing like अरे आपके बच्चे बड़े सुंदर हैं. Nothing like that. It has to be something which is very professional. But once you do that, they will form a connect that will cut through the crap of every resume that they've heard so far. Right. I'm digressing a little, but I would never imagine that things that like people slide into your DMs with wedding invitations. They no, I can go on and एक पूरी किताब में लिख सकता हूँ of the kind of emails that I get. They are just the so epic bizarre. emails I receive. They're so bizarre. इतने entitled होते हैं ना. Subject line urgent. And फिर अंदर होगा I need a job. Call me on this number. Like sorry bro. Like हाँ मतलब मैं थोड़ा सा busy हूँ आज नहीं कर पाऊँगा. Right. And pata hai, when we put out a questionnaire asking that, what would you like to ask in Ankur Warikoo? And one question that funnily came our way was, कि यार,
फॉलो अप कितना करना चाहिए एक HR से? सब दे दिया, बातचीत हो गई, आइस ब्रेक हो गए, रेज्यूमे चला गया, कितना फॉलो अप करे? बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट टू मच दैट यू लुक डेस्परेट, बट यू ऑल्सो डोंट वांट टू मिस आउट एंड फील लाइक यार शिट मेरे को कर देना चाहिए था, कितने गैप में करना चाहिए था, एक हफ्ता वेट करे नहीं करे? Correct. It's a terrific question. Let's understand the necessity or the pressure that one feels follow up का. It is because they know कि यही एक live opportunity है अभी, और अगर ये भी बंद हो गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा, right? That is the same as you feeling stuck. जब भी आप किसी भी ऐसी पोजीशन में अपने आप को पाएंगे जहां आप स्टक हैं, प्रेशर में हैं, कॉर्नर हो चुके हैं, you will always make super shitty decisions in life because कोई escape ही नहीं है. The way to deal with this is, I always say, digital marketing का एक concept होता है, which is called the funnel way of thinking about things. एक फनल क्या होता है? फनल होता है जो वो छन्नी होती है जो ऊपर से बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी जो नीचे हो जाती है, बोतलों में जिससे हम तेल भरते हैं या पानी भरते हैं, जो भी होता है. इट इज़ वेरी वाइड एट द टॉप, तो उसको बोलते हैं टोफू, टॉप ऑफ फनल. एंड इट्स वेरी थिन एट द बॉटम, इसको बोलते हैं बोफू, बॉटम ऑफ फनल. एंड आपका काम है कि कितने लोग टॉप ऑफ द फनल में घुस रहे हैं और कैसे वो धीरे धीरे करके बॉटम ऑफ द फनल में आ रहे हैं. सो अगर आपने डिसिप्लिन्ड मैनर में अच्छे से ईमेल्स लिखकर, अपने रेज्यूमे को पर्सनलाइज करके, अपने कोल्ड ईमेल्स को पर्सनलाइज करके, अपने मैसेजेस को पर्सनलाइज करके एक टॉप ऑफ द फनल बनाया हुआ है, जहां आपको पता है कि आप हर रोज़ 2 या 3 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो महीने में आपने कुछ 50 या 60 जॉब्स में अप्लाई किया होगा, उसमें से आपको एक 10% रिएक्शन मिला होगा. सो मे बी 5 या 6 से रिएक्शन आया होगा. उन 5 से 6 में से आपको 2 और 3 इंटरव्यू आए होंगे. उन 2 और 3 इंटरव्यू में से आपको 1 और 2 ऑफर आए होंगे. उसमें से शायद आप एक एक्सेप्ट करेंगे. अब यही 100 का अगर आप 200 या 300 कर देते हैं एंड फनल के मेट्रिक्स सेम रहते हैं, देन सडनली यू हैव not 1 or 2 offers, but 4 or 5 offers. Yeah. You don't have 10 interviews, you have maybe 20 and 25 interviews. Yeah. That makes all the difference. The percentage reaction or response doesn't change. जो आप पीछे पड़े हुए एक फॉलोअप के, वो 10% रिस्पॉन्स रेट के साथ ही होगा. लेकिन अगर आप एक जने के पीछे पड़े होंगे तो आपको सिर्फ 10% बार जवाब मिलेगा. अगर आप 100 लोगों के पीछे पड़े होंगे तो आपको 10 बार जवाब मिलेगा. And the base is what needs to always be worked on. तो top of the funnel has to be something जहाँ वो feed किए जा रहे हैं, and you have to make sure that bottom of the funnel पहुँचते पहुँचते आपने अच्छा काम किया होगा ताकि conversion हर step पे सही से आ रहा है. तो the foolishness of a career will be, मैंने 5 jobs के लिए अप्लाई कर लिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अब इन 5 में से तो मिल ही जाएगी. नहीं ब्रो, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 50 जॉब्स में भी अप्लाई किया हुआ है. एंड अगर आप अच्छे से 50 जॉब्स में अप्लाई करेंगे, आपका पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन विल बी फार हायर देन देम. बट एट द सेम टाइम, आई एटलीस्ट फ्रॉम अ फॉलो अप परस्पेक्टिव ऑलवेज से मैक्सिमम 2 follow-ups between, and the difference between each follow-up is a minimum of 7 days. Okay. तो अगर 2 या 3 हफ्तों के बाद और 2 follow-ups के बाद जवाब नहीं आता है, तो प्लीज़ अपनी इज्जत को अपने पास रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में नीचे मत जाइए और फॉलो अप करना बंद कर दीजिए. इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. इसको पर्सनली मत लीजिएगा. उन इंसान का काम है अपना काम करना. उनको ना आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता है, ना आपकी दुश्मनी है. इट इज़ सिंपली समथिंग दैट दे आर डूइंग एंड यू हैव टू मूव ऑन, विच इज़ व्हाट is true for life as well. Yeah, that is true. And मैंने पता है recently एक theory के बारे में मैं पढ़ रही थी, उसमें ये था that some people also time when they send their follow-ups or their resumes. For example, most people prefer sending it in the first half of a Monday as opposed to a second half of a Friday. Yes. Does that happen? It Like the always psychology does. of... Absolutely. जैसे LinkedIn is a great example of that. Only last week I believe I got an email from somebody. He's a content creator on LinkedIn. He's like, मैं notice करता हूँ कि मेरे Monday के post ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते हैं. मेरे सैटरडे संडे को पोस्ट टिप हो जाते हैं. आपने भी देखा है क्या एल्गोरिदम कुछ चेंज हो गया है, कुछ ही हो गया है? मतलब नहीं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. लिंक्डइन इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स मोस्टली. तो
जब सैटरडे संडे के बाद वो मंडे को आते हैं, उनकी पहली फितरत ये थोड़ी होगी कि लिंक्डइन चेक करेंगे। वो पहले अपने काम पे फोकस करेंगे ना, क्योंकि 2 दिन से काम नहीं हुआ है, कुछ काम टल गया होगा, डिले हो गया होगा, एडअप हो गया होगा, बैकलॉग है, एग्जैक्टली बैकलॉग है, राइट। तो मंडे को उनका फोकस होगा काम क्लियर करो, फ्राइडे को वीकेंड की मस्ती है, चिल है, वो वापस नहीं कर रहे होंगे। सैटरडे संडे को दे वांट नथिंग टू डू विद वर्क, कोई लिंक्डइन नहीं चेक करना वगैरह। सो द पीक ऑफ लिंक्डइन इज एक्चुअली वेडनेसडे, बिकॉज दैट्स व्हेन वी आर स्प्लिट, लाइक दैट्स व्हेन वी आर लाइक यार हफ्ता भी चल रहा है, वीकेंड आया भी नहीं है, जॉब से थोड़ी बहुत इरिटेशन भी आनी शुरू हो गई है, तो चलो देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं लिंक्डइन पे, थोड़ा सा इधर उधर स्क्रॉल कर लेंगे, 1-2 जगह अप्लाई कर लेंगे वगैरह। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ लिंक्डइन। The same with email. Working professionals don't like checking their emails after say 5 p.m. because they feel that they're getting sucked in. They don't like checking their emails before 10 a.m. because they feel यार दिन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी इसमें घुस जाएंगे. So the usual best time to reply to send an email is right after lunch time. क्योंकि लंच टाइम के बाद बहुत कम लोग सीधे काम में घुस जाते हैं, थोड़ा सा चिल मारते हैं। तो लाइक यार लंच अभी हुआ है, थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं, थोड़ा सा ना नींद सी आ रही है, चलो फिर थोड़ी सी रैंडमनेस करते हैं, तो ईमेल चेक कर लिया अपना, या लिंक्डइन देख लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया वगैरह। दैट्स अ गुड टाइम टू कैच देम, बिकॉज दैट्स व्हेन दे आर एट देयर लीस्ट गार्ड, अ लिटिल मोर वनरेबल। बट अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा काम का वो है, शाम को घर जाने की जल्दी है, and it will almost get missed. That's a great practical insight, actually. Yeah. And you're a big believer of cold emails, I believe. I love cold emails. Why? Because cold emails is expanding the possibility of your world manifold, right? अगर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करूं या हेल्प मांगूं जिनको मैं जानता हूं, तो मेरी तो दुनिया स्टार्ट में इतनी लिमिटेड हो गई। लेकिन अगर मैं इलॉन मस्क को भी एक ईमेल लिख सकता हूं, और मार्क ज़करबर्ग को भी एक ईमेल लिख सकता हूँ, और मुकेश अंबानी को भी लिख सकता हूँ, दीपेंद्र गोयल को भी लिख सकता हूँ, कुणाल महल को भी लिख सकता हूँ, रितेश को भी लिख सकता हूँ, VSS को भी लिख सकता हूँ, then there's nothing stopping me. There's nothing stopping me. And the only thing that stops people is उनके दिमाग में कि यार ये तो बहुत बिजी लोग हैं, ये कौन सा रैंडम ईमेल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। And you know what? You're right. You're absolutely right. But you'll be shocked at how high the response rate of cold emails is as against what you think it actually is. मेरे एक्सपीरियंस में, एंड दिस इज नॉट बिकॉज आई एम अंकुर वारिकू, दिस इज मैं कोल्ड ईमेल्स 25 साल से लिखता आ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट जब था तब मैं रैंडम कोल्ड ईमेल लिखता था प्रोफेसर को होमवर्क की हेल्प के लिए, कि मुझसे ना ये हो नहीं रहा है, ये आप ही की किताब में ये सवाल लिखा हुआ है, अब आप ही मेरी मदद करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ। एंड प्रोफेसर यूज्ड टू थिंक लाइक ऐसे बच्चे तो हमने कभी देखे भी नहीं है, तो लगे हुए हैं को मिले। उस समय पे याहू मैसेंजर होता था, तो एक्चुअली गॉट ऑन टू याहू मैसेंजर विद प्रोफेसर्स ऑफ द बुक्स दैट आई वाज स्टडिंग फ्रॉम, दे आर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, सो आई नो इट्स वर्क्स। And I've been a huge loyalist of it, because जब कभी भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई इंस्पिरेशन चाहिए हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, you would just write to people and be like, yeah, this is what I want, this is what I've done, this is where I'm stuck, and I know that you're the best person to help me. Can you help me? And people will be willing to help. Not everyone, but they will be willing to help. People like Elon Musk for sure. If you see Elon तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे जिगरी दोस्त है। If you see his tweet wall or feed, you will see that he replies to random people as well. Random people. Yeah. तो अब वो कैसे, ऐसा तो नहीं होता ना कि उसकी PR टीम उसको बोलती है इसे रिप्लाई करो, इसको नहीं करो वगैरह वगैरह। He just does it because there's something that connects him to that tweet and that moment or that post in that moment, which means you have a chance as well. And I would say absolutely double down on a chance, क्योंकि what is the worst thing? It'll just be no. And it goes back to one of my most important principles in life, that if you don't ask, the answer is always no. जब तक आप नहीं पूछेंगे, जवाब हमेशा ना ही होगा। पूछो, क्योंकि पूछने के बाद शायद जवाब हाँ हो जाए, and that will make all the difference. Right. हम भी पूछेंगे Elon Musk से if he wants to come बिल्कुल, to our podcast. absolutely, बिल्कुल बनता है। पता है, मैं आपसे जितनी बात कर रही हूँ, आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन डेटिंग एंड लाइक फाइंडिंग अ जॉब, लाइक एवरीथिंग इज सिमिलर, इवन द पॉइंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल से घोस्टिंग, डू यू नो ऑफ घोस्टिंग इन डेटिंग लाइफ, राइट?
तो यहाँ पे गोस्ट कौन करता है? एचआर, HR. है ना, कि भेज दिया, एक आध थोड़ी बात हो गई और उसके बाद गायब, गायब. यू नो, लाइक वो बहुत अलग तरह की रिजेक्शन फील होती है, राइट? हाउ डज वन मूव ऑन? फॉरगेट दैट, हाउ डज वन प्रोसेस दैट? I think the only way is to realize कि यार ये पर्सनल नहीं है. उनके शूज़ में जाके थोड़ी देर बैठने की कोशिश करो कि उनके पास पता नहीं कितने हज़ारों लाखों या 100 में भी जितने लोग हैं वो आ रहे हैं. They most likely have just forgotten. डेटिंग में कभी अलग होता है क्योंकि डेटिंग में ना लिमिटेड सेट होता है, तो वी डोंट रियली फॉरगेट, वी गोस्ट पीपल कॉन्शियसली, लाइक पर्पसली गोस्ट किया जाता है. लेकिन एचआर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ना लोग भूल ही जाते हैं कि ओ यार उसको जवाब देना था या वो कुछ हो गया क्योंकि दे मूव्ड ऑन, फाउंड समवन एल्स और समथिंग एल्स हैपेंड वगैरह. तो वन, डोंट टेक इट पर्सनली. It certainly is not about you. Number two, if you keep wallowing in that misery, you're only harming yourself. क्योंकि उनकी जिंदगी में तो वो मूव ऑन हो चुके हैं ना, बिल्कुल डेटिंग जैसे कि आप रो रहे हैं यार उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो उसने गोस्ट कर दिया वगैरह वगैरह, पर वो तो आगे बढ़ चुकी है. You're still the one who's just crying in your misery. Please help yourself and move on. And the third way is, I often say this, the most powerful you will ever feel in life is when you have options. आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा अपने आप को पावरफुल फील करवाएंगे जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो. एंड रिलेशनशिप ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक को डेट कर रहे हैं, दूसरे को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, तीसरा अभी वो प्रोफाइल चेक हो रहा है, नहीं. इट इज़ सिंपली नोइंग कि दिस इज़ नॉट द ओनली पर्सन दैट आई विल एवर फाइंड इन माई लाइफ टू मेक मी हैप्पी. I am capable of making myself happy. I am capable of finding people who will make me happy, and I'm capable of making people happy through who I am. The same way, I am capable of applying to a lot of places. I'm capable of getting a shortlist at most places. I'm capable of adding value to those jobs. I am not at a dead end क्योंकि एक HR ने मुझे घोस्ट कर दिया या एक इंटरव्यू में मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ. That conviction, if not there, will always make you feel that you are a loser. But जिस दिन वो belief आ गया, that's it. You are absolutely invincible. Winner mentality, or at least keep trying. Don't give up. There's no harm. मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप फेलियर से रिकवर कैसे करते हैं. मतलब ब्रो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बता दो ना मुझे. लाइक तुम मर चुके हो, पिट चुके हो, सबसे छोटा सा चूहा भी उस दीवार के कोने में होगा और सामने बड़ी बिल्ली भी होगी ना, वो तब भी फाइट मार रहा होगा. वो ये नहीं बोलेगा अरे बिल्ली आ जाओ मार लो मुझे. द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज फंडामेंटल इन एवरी ह्यूमन. तो आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि जब आप फेल हो जाते हैं तो आप अपने आप को उठाते कैसे हैं. लाइक जीने के लिए, क्योंकि मैं मर नहीं चुका हूँ, मेरे पास अभी भी अपनी सांसें हैं, तो व्हाट ऑप्शन डू आई हैव बट टू नॉट पिक मी अप and just move forward, show up the next day. It's not going to be easy, लेकिन option नहीं है bro. तो I would say the same thing. Like an interview is like the smallest rejection you'll ever have in your life. बहुत सारी और बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, तो इसको प्लीज दिल पे मत लीजिए. Right, makes sense. Absolutely. I'm glad. Interview में वैसे जब one-on-one कोई बैठता है, so are there some legit mistakes that so many people make and they don't even realize that they've fucked up? Oh, so many. Number one. एंड ये भारत की प्रॉब्लम है. जैसे ही जवाब पूछा जाएगा ना, वैसे ही फर्रातेदार जल्दी से जवाब देने की चुल मची होती है हमें. हाजिर जवाबी. बिल्कुल. लाइक एंड इट इज फॉर दिस इनेट बिलीफ कि आई विल बी रिवॉर्डेड फॉर गिविंग अ फास्ट आंसर, व्हेन द ट्रूथ इज यू विल ओनली बी रिवॉर्डेड फॉर गिविंग द राइट आंसर. यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर बीइंग फास्ट, you're rewarded for being right. तो प्लीज़ अपना वक्त लेके उस सवाल को समझ के, उस सवाल के मेन मोटिव को समझ के जवाब देने की कोशिश करिए. It's totally okay if you want to take 5 seconds. It's totally okay to say, okay, I'd like to take a minute before or say 30 seconds before I answer. Let me just get my thoughts together. That's number one. Number two, insisting that speaking fast is a reflection of your confidence. हमें जल्दी बोलने की आदत है, खासकर जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि जो लोग
शशि थरूर जैसी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि कमांड ओवर लैंग्वेज इज स्पीड ओवर द लैंग्वेज। इट्स नॉट ट्रू। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, इतना धीरे बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस में बोला जाता है कि प्लीज इसको 1.5x पे दिखेगा वरना आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने वीडियो देख के बोर हो जाता हूँ। तो इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कुछ, एंड मैं धीरे धीरे उसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप उसको 2x पे देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए। सो प्लीज बी स्लो इन हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि उससे आप कॉम्प्रिहेंसिबल बनेंगे, लोग आपको समझ पाएंगे, वो आपके इमोशंस को समझ पाएंगे। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपल आर सुप्रीमली अपटाइट इन एन इंटरव्यू। हंसते ही नहीं है, स्माइल ही नहीं करते हैं। वो ऐसे लगता है कि पुतले के सामने खड़े हुए हैं, एक रोबोट हमारे सामने AI के जवाब दे रहा है, और वो एकदम तोते के जैसे रटके आए हैं सब कुछ, और लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हाँ आल्सो। बिल्कुल, या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो वीकनेस में आई एम अ परफेक्शनिस्ट, एकदम पूरा नो स्टैंडर्ड आंसर। ऑल ऑफ दिस इज बुलशिट। you have to come across as a human. Please smile. It is like, let me ask you a question. अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों सेम स्किल्स हैं, दोनों ने सेम तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, दोनों की सेम एजुकेशन है, दोनों का सेम एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक इंसान मुर्दा लाश जैसे इंटरव्यू दे रहा था और दूसरा इंसान ने अच्छे से स्माइल करके वो इंटरव्यू दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए चेहरे भी दोनों के सेम है, आप किसको पिक करेंगे? Smiling. इट इज जस्ट सो ऑब्वियस दैट द लाइकेबल पर्सन विल ऑलवेज विन। Yeah. द लाइकेबल पर्सन विल ऑलवेज बी द टाई ब्रेकर। तो आप टाई ब्रेकर में इसलिए क्यों हारेंगे? क्योंकि आपको लगता था, किसी ने बोला कि भाई एकदम ना स्ट्रेट Serious दिखना फेस, है। बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, प्रोफेशनल सेटिंग है, कुछ नहीं। ये नहीं है कि पार्टी करनी है या अपने आप का मजाक उड़वाना है, बट यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू ब्रेक इनटू अ स्माइल, टू आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड दैट विल ओनली कम, अगेन आई से दिस, जब ये विश्वास या ये बिलीफ या ये कन्विक्शन होगा कि ये एक इक्वल रिश्ता है। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं किसी से नौकरी की भीख नहीं मांग रहा हूँ, और वो मालिक नहीं है जो मुझे कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनको भी कुछ मुझसे चाहिए जो मैं उनको दे सकता हूँ, और मुझे भी उनसे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं उनसे ले सकता हूँ। सो इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप। Give and take. I come with skills, with experience, with an understanding, with curiosity, with eagerness, with ambition, which they will value. And they have something that will use my skills to the best. तो ये एक equal relationship है। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि नहीं, वो भगवान है और वो आप पे दया करके आपको एक नौकरी देंगे जिससे आपकी रोजी रोटी बनेगी, you will always then feel कि यार I don't have any scope of making a mistake. Then you start thinking of yourself as lesser. Exactly. Right? That's when, and same for dating as well. Yeah, that's true. That's true. It- The it is moment so you true. think that you don't stand a chance in front of Yeah. them, you अपनी quality अपनी आँखों में आप कम कर लेते हो. बिल्कुल, like होता है ना, oh she's out of my league. तो you're trying too hard. You're trying to be that absolute nice guy who you're not. You're Agreed. trying to just portray a picture which you will of course fail when Yeah. reality hits. सब कुछ. Yeah, I agree. And I just forgot my नहीं, question. that's because I cut your rhythm of thought. I'm sorry about No, that. that's okay. That's okay. Yeah, so one question I actually wanted to ask. This is not in this. This was a personal Sure. question that came to me. काफी बारी ना क्या होता है, जब इंटरव्यूज में बैठे होते हैं, towards the end people are like, okay, do you have any questions to ask us, right? Is that a trick question? No, I don't know. बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिक क्वेश्चन ही होता है बिकॉज दे जस्ट सो यूज्ड टू इट कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बट इवन इफ इट इज, यू हैव नो वे ऑफ नोइंग. आपको सवाल पूछने चाहिए. किस टाइप के? मेरे हिसाब से द बेस्ट क्वेश्चंस आर कि व्हाट आर ट्रूली द थिंग्स दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस जॉब जो अभी तक आपको पता नहीं चला है. हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स. नंबर 1, हाउ डज द डे टू डे ऑफ दिस रोल लुक लाइक. मुझे ब्रॉडली तो पता है कि इस रोल को हासिल क्या करना है, बट डे टू डे क्या होता है. व्हाट आर द टीम मेंबर्स लाइक what are the common traits of the top performers of this role? What are the reasons why people have left this job? What are the things that worry you as a manager that you would want a team member to help you with? Right. इससे genuinely आपको बहुत कुछ पता चल जाता है रोल के बारे में, मैनेजर के बारे में, कंपनी के बारे में. So anything that concerns you would be a good question to ask.
what would be worrying for me as somebody who hires a lot is कि सवाल ही नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है कि सवाल ही नहीं है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में. मैंने पूछ लिए तुमसे 1000 क्वेश्चन क्योंकि मुझे तुम्हारे को सब कुछ जानना है, करना है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं जानना है हमारे बारे में? Because that for me is a red flag. Right. Makes sense. Because a lot of people feel कि shit, you know, they feel that suddenly now we're in a spot. अभी तो आंसर कर रहे थे, अब क्वेश्चन पूछने के लिए and they go blank in that moment. Yeah. But good insight. There's one, I'll have to dig where it is, but what I figured, and I've done some 1500, 2000 interviews in my life, if not more. हर एक इंटरव्यू घूम फिर के 10 सवालों का जवाब ढूंढ रहा होता है. एंड इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन दोज 10 क्वेश्चंस, you will have the answer to any question that any interview throws at you. Any. I'm not able to find where that is, but somewhere in this book it is those 10 questions. Okay. और वो 10 question अगर आप कर ले, of which one is, do you have any questions for us? आपके पास सवाल होने चाहिए. Before you go for an interview, you have to think of questions that you will ask. Yeah. Because those are just one of the standard 10 questions that companies want to know from you. Right. And you know, I was watching one of your interviews while I was researching for this, and I found out that you have your own set of, you know, questionnaire of like say 10 to 20 questions that you give to every candidate, और वो तो आंसर करना ही करना, उसके बाद हम आगे देखेंगे. Exactly. ठीक है. So I thought that maybe we should ask what your answers to those Oh, two that'd be questions lovely. would be. That's so awesome. Right? That is so cool. Let's do get that. a little peek into Ankur Wariku's Haan, mind. perfect. Okay. What's the worst thing about you? The worst thing about me so far is that I bite my nails, and I don't know why I bite my nails. Oh, damn. It's because you're married. If you'd been single, then that would be a red flag for single women. Exactly. Okay, speed versus perfection. For me, speed, for sure. Yeah. I think perfection is a farce. Money versus power. It used to be money for the longest time. Now it is power. When did it change? I think it changed when I got money. बड़ा standard answer. Yeah, but that's actually true. How angry do you get? I don't get angry at all. Like very, very rarely. And अगर होता भी है तो वो सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे होता है. Oh, अच्छा, road rage type. हाँ, मतलब रोड रेज तो बहुत स्ट्रांग हो गया. मैं लेकिन तुम कहाँ ही देख के चला रहे हो? मतलब कुछ तो थोड़ा सा, बट वो अपनी जिंदगी में मस्त है. When do you get impatient? Very rarely. I'm a very, very patient person. Yeah. Very patient person. Well, if you could sit through a conversation with Samir Raina, I can imagine that you've been patient in your life. I can sit through a lot of garbage and a lot of really good quality stuff, and people will not be able to figure कि मैं क्या experience कर रहा हूँ उस मामले में. हाँ, काफी in that moment poker face हो जाता है वो. But how was that interaction with Samir Raina? Like, I'm genuinely curious. When I was like, you know, going through your videos, I was like, what the fuck is this? What is this, you know? Like, what metaverse is this? ये नहीं, you know, I had, तो वो एक period था, I think we used to call it money talks or something like that. I was chatting with people that I really, really wanted to know what their perspective about money was. So I spoke to Nikhil and Nitin Kamath, I spoke to Tanmay, I spoke to Samay, I spoke to lots of other really, really good people. And I just used to have a lot of fun understanding कि उनकी पैसे के साथ रिश्ता कैसा है, कैसे पले बड़े, आज क्या पैसा के साथ करते हैं, कौन सी सबसे बड़ी या महंगी परचेज करी हुई है, ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. तो it was just so free flowing, at least in my head, that I didn't care क्या setting है, कौन सी Zoom call recording है, कौन सा green screen पीछे लगाया हुआ है या कुछ भी ऐसा है. It's just so much fun. And Samay is like one of those very few people that at least I know of who has a no holds bar. Like nothing really. I don't think he has any filter in his head that's telling him कि ये चीज़ इस moment पे शायद नहीं बोलनी चाहिए. He would just say whatever is on his mind. That defines him because it works for him. It will draw at any level both admirers and haters. But I think if he's happy, then no, why are we to complain? Yeah, that's true. What's your relationship with money like? It's become really, really healthy. For the longest time, I used to hate money. Why? Because we never had any of it while growing up.
तो मुझे ऐसा लगता था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, और अगर पैसा होता तो हम खुश होते, पैसा होता तो कोई मुश्किलें नहीं होती, पैसा होता ये होता वो होता। तो मुझे पैसे से बहुत ज़्यादा घिन थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि पैसे की कभी इज्जत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, विच वॉज अ रियली रियली बिग मिस्टेक, क्योंकि पैसे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, पर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चॉइसेस देने के लिए। आई गो बैक टू द सेम थिंग दैट यू फील द मोस्ट पावरफुल व्हेन यू हैव ऑप्शंस। मुझे अभी याद है भुवन भाम के साथ जब मैंने यही सेम कॉन्वर्सेशन करी थी, मैंने उनसे पूछा था कि भुवन तुम्हारे लिए पैसा, उसका वजूद क्या है, उसकी अहमियत क्या है? एंड ही गेव मी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आंसर्स आई हैव एवर हर्ड। ही इज़ लाइक, मेरे लिए पैसा ज़रूरी है टू नो कि मैं कोई भी चीज़ जब भी चाहे खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट फॉर मी मेक्स मी फील पावरफुल, कि मैं जो भी चाहूँ खरीद सकता हूँ, बट आई डोंट हैव टू बाय इट, आई डोंट नीड टू बाय इट। एंड आई थिंक दैट ऑप्शन इन योर हेड makes you feel powerful. Which is what I have today. Would you say you have fuck you money? Yes, for the things that I have to do, yes. For the things that I have to do, yes. I don't have to. As a family, there's only one thing that we spend a crazy amount of money on, which is traveling. And we travel really well. So I don't think we think twice about कि हमें कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। हमारा मन करता है हम चले जाते हैं। एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़, वी डोंट हैव एनी मटीरियलिस्टिक नीड्स। हमें कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है, घर खरीदने का कोई शौक नहीं है, महंगी घड़ियाँ, महंगे जूते, कपड़े, नथिंग ऑफ दैट। सो इट्स नॉट दैट अरे आई विल हैव फक यू मनी कि मैं किसी स्टोर में जाऊँ और बोलूँ ये LV का पैक कर दो, मुझे कोई शौक नहीं है उसका। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई डोंट इवन नीड दैट मनी, बट वेयर वी नीड इट वी हैव इट। Nice. I'll tell you a stat. Okay, I recently came across this. Oh, here, right. So, I recently read a study that talked about how men who drive luxury cars are more likely to be self-centered and unempathetic. I had no idea about that. Yeah. It suddenly explains so much. Yes, it just earned you a compliment. नहीं, मुझे ऐसा ये स्टडीज़ जो होती हैं इनमें कॉज एंड इफेक्ट हमेशा ट्विस्टेड होता है। तो बड़ा सनसनी वाला हेडलाइन तो होता ही है कि जो लोग टमाटर खाते हैं उनका EQ कम होता है। लाइक दिस जीरो कोरिलेशन, बिकॉज इफ यू हैड बीन अ गुड साइंस स्टूडेंट यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड कॉजेशन। बट I don't know if it's true or not, but it makes for a good headline. Yeah. अभी जैसे आपने EQ की बात करी, तो let's settle this debate of IQ versus EQ. Sure. What is your take? I think IQ is the main component that drives any agenda forward. It is, in my opinion, a necessity. Because अगर आपके पास IQ नहीं होगा, then the ability for you to take wise decisions in life, irrespective of whatever it is, whether it's money decision, relationship, career, so on, that will just be hindered. Because you don't have the processing power to even comprehend how to evaluate an option, how to think about how to do things. What EQ does is it elevates your ability to seek others' counsel or ride on other people's experiences to get to that same decision. तो EQ का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को समझ सकते हैं। EQ का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से कि आप लोगों से सीख सकते हैं। आप सिर्फ अपने अंदर ही समा के नहीं बैठते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही रिलाई नहीं करते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू बी वनरेबल, यू हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व पीपल, to learn from their experiences, to learn from their mistakes, to have a conversation which is as much to help them as it is to learn from them. That for me is high EQ. और जिसके पास हाई EQ होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर पावरफुल हो गया ना, क्योंकि that individual now is not just dependent on their own innate IQ, but collectively the IQ of everyone around them. Yeah. And their EQ will help them absorb that IQ. So I genuinely feel कि IQ एक eligibility bar होना है, जहाँ उससे अगर कम होगा things will be harder, you will struggle, it will not be so obvious to you why people do these things, you may not learn very fast and so on. लेकिन अगर उसके बियॉन्ड आपको एलिवेट करना है तो हायर IQ आपको शायद उतना हेल्प नहीं करेगा जितना हायर EQ करेगा, बिकॉज यू विल बिकम अ स्पंज ऑफ अदर पीपल्स IQ. Right.
But this reminds me of this one other question that somebody sent in when we were asking them. And, so a lot of young people, they are in a fix. They feel that, this is the time, 20s are your years to make or break your career, right? At the same time, hormones are aging, right? So you want to be in a relationship, you want to have a girlfriend. Would you say that having a girlfriend impacts negatively to a young person building a career? It's a terrific question, and I'll give you what my answer on this is. I feel that any relationship that makes life difficult for you is the wrong relationship. Any relationship. A relationship's core purpose is to elevate your order. It is not to deflate your order. And that means whether it is a friendship, whether it's a love relationship, whether it is a work relationship, if it's not elevating your order, it is most likely the wrong relationship. If it's not making you a better person, if it is not giving you freedom, if it's not giving you peace, if it's not making you happy, it is the wrong relationship. Now that doesn't mean कि वो हर दिन, हर समय सबसे खूबसूरत चीज होगी. लेकिन when you zoom out, is it a net positive or a net negative? That is the important thing to know. And अगर कोई भी रिश्ता होता है, जैसे मुझे सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं कि आई एम इन दिस टफ रिलेशनशिप, दिस थिंग, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला. एंड इट्स नॉट सो मच कि वो समाज से लड़ रहे हैं, इट्स सो मच अबाउट कि वो शायद इस रिश्ते में खुश भी नहीं है. देन आई आस्क देम कि व्हाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप? जेन्युइनली, ऑनेस्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप? They don't give me an answer, but I know the answer. The answer is because they are scared to be alone and to venture out and build another relationship. तो ये जो एक लाइफ की प्रिंसिपल है ना, which I hate, something is better than nothing, is a terrible way of looking at life. Because that something is better than nothing makes us stay in toxic jobs, in toxic relationships, live a toxic life. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ता कम से कम है तो, वरना तो हम अकेले होंगे. ये जॉब कम से कम है तो, वरना तो हम बेरोज़गार होंगे. ये कम से कम है तो, वरना ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी. पर ब्रो, अपने आप को अगर तुम वो नथिंग नहीं दोगे ना, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि ज़िंदगी में असली तुम्हें क्या चाहिए, वाकई में तुम्हें कौन सी चीज़ खुश कर सकती है. तो आई ऑफन से दिस, उस नथिंग के पीछे जाओ. बहुत डरावनी जगह है, बहुत डरावनी जगह है, लेकिन उस डरावनी जगह से ही तुम्हारी ज़िंदगी उभर के आएगी. वरना तो तुम ऐसे समथिंग में फंस जाओगे कि ज़िंदगी पर फिर यही है. लाइक सो मेनी पीपल, एंड वी सीन relationships, jobs, like I'm like, why are you in this toxic job? Just because you get a salary at the end of every month. And I understand responsibilities and I understand the pressure of not having money. But I can guarantee you कि अगर आप इसको अपनी एक पेइंग द बिल्स वाली जॉब समझकर अपनी कोर जॉब बना देंगे, एक और नौकरी ढूंढना, यू विल बी अ बेटर पर्सन. बट लोग करना ही नहीं चाहते. मे बी शायद वो इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज एज यू नो एन अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि डोंट गिव अप ऑन द गुड इन सर्च ऑफ द बेटर. या एग्जैक्टली. नहीं, वो बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू बर्ड्स इन अ बुश और ये सब. तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स टू द सेम थिंग कि जहाँ होना कम से कम कुछ तो है, खाली हाथ तो नहीं हो. राइट. एंड that is almost always imposed by society. It's just always the way the world will try to bring you down. And what is funny is when you look at people who inspire you, you look at people that you would want to be, you look at people that you feel are successful. वो ज़िंदगी ऐसे नहीं जीते हैं. वो ज़िंदगी पूरी की पूरी दांव पे लगा देते हैं. तो बोलना तो बहुत आसान है कि यार एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, वो अंबानी, वो दीपेंद्र, वो ये सब रॉक स्टार्स. बट ब्रो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो ज़िंदगी आपसे कितनी अलग जीते हैं. राइट. तो बहुत आसान होता है बोलना कि हमें वहाँ पहुँचना है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनके जैसे सोच पाना एंड उनके जैसे वो फितरत बना पाना. राइट. दैट इज़ ऑल द डिफरेंस. You know, I was watching this video recently in which a 93-year-old billionaire
was asked, what is the single most important decision that you've had to make in your life, right? partner. And he said the same thing, like choosing your life partner, because if it's right, it can change your life, and if it's wrong, then it can just ruin you. Absolutely. So true. My next book on relationships will literally have one page saying, please अपने पार्टनर को चूज करने में जल्दबाजी मत करिएगा. And it's hypocritical of me to say that because I lucked out. I met Ruchi when I was 20. We started dating. It was the only relationship I ever had. We dated for 7 years. And she's turned out to be, and I hope I have turned out for her, an incredible partner. But again, as I say, it was just luck. It was just so lucky and bizarre कि जो पहली डिसीजन मैंने अपनी रिलेशनशिप के तरफ ली, that turned out to be the best decision that I could have made. People like you inspire Karan Johar. अरे it's like क्या ही बोले आप, पिक्चर तो बनी नहीं. हाँ कोई बात नहीं, बुक लिख लेना. हाँ बुक लिखेंगे हम ही अपने बुक पे पिक्चर बनाएंगे. Right. वैसे I love talking about love. Okay. Right. I feel that it's a very important subject also, and more than a subject, it's just a conversation that most people don't have, especially men. So if I were to ask you, how would you define love? At 44, I have a very different definition of love than what I had when I was 24. In my 20s, love was all about attraction. It was all about chemistry. It was all about that vibe. It was all about how you feel. And of course, as you said, your hormones are racing and they're making you feel so many different things. So it was just finding that thing that says, this feels so right. Then in 30s, love became about building a family, creating something together, understanding each other. But now in my 40s, and maybe the definition will change when I grow older, for me, love has 3 very important components to it. Ek is respect. Love for me largely is about respect. अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और आपको ऐसा लगता है कि आप जो हैं उसकी वजह से आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है. नंबर 2, लर्निंग. अगर आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं सीखते हैं, आपका पार्टनर आपसे कुछ नहीं सीखता है, इस रिश्ते की वजह से आप दोनों एक बेहतर इंसान नहीं बन पाते हैं, तो वो प्यार नहीं है, अगेन ट्रांजैक्शन. एंड नंबर 3 इज टुगेदरनेस, विच इज you don't have to spend every second of your waking life together. You actually don't even need to have a life which is like, दो जिस्मों एक जान, वो सब love story करण जौहर, नहीं. It is that you appreciate and acknowledge the presence of someone else and their importance in your life. तो जब मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत छोटा होता है, my natural default is रुचि. अगर उनके साथ कुछ होता है, her natural default is me. अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है, our natural default is each other. We love spending time as a family. We don't run away from each other. हमारा ऐसा नहीं है कि 4 बेडरूम में 4 लोग अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं और फिर सिर्फ एक पॉइंट पे अपने आप को फैमिली बुलाते हैं. There's a genuine sense of feeling together and loving that companionship that we have of each other. That for me today is love. Like it's respect, it is immense learning, and it is togetherness. Because that then becomes the foundation of what it will lead to as the years come by. Yeah. And I think the only difference then that I find between love and friendship is that togetherness. Because that togetherness is something that you will almost always feel just with your Like partner. Companionship. Like, a friendship ought to be of respect. A friendship ought to be of learning. But a friendship will very rarely be about companionship. It will be about association. It will be about spending time together. But it will not be कि मुझे उस दोस्त की craving हो रही है कि I have to be with that person to feel complete. That I think happens in love. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? My love language is twofold. One is physical touch. I'm a Kashmiri. Kashmiri mein, there is something that my parents used to do and I love it. It's called fash in our language.
It's basically rubbing the back of who you love, particularly when they're waking up. So it's this very gentle rub on the back, and I do it with Ruchi, I do it with the kids, and I feel that is something that is genuinely my affection, because I don't do it with anyone else. My second love language is sharing. I do not share very easily. Because I am able to deal with my own problems very, very effectively. I do not overly depend on other people. But if I'm sharing myself vulnerably in front of someone, that means that I love that person truly. And third is travel. If I can travel with someone, that person is really, really close in my heart. क्योंकि मुझे अपना स्पेस बहुत पसंद है, और मैं रैंडम लोगों के साथ वो स्पेस शेयर नहीं करता. तो आई रियली लव मीटिंग पीपल, हैविंग कॉन्वर्सेशंस, sharing my experiences and so on. But travel is a whole new phenomena where spending time in a way where you're living together is a very different thing. वो एक अलग तरह की इंटीमेसी बहुत होती है, बहुत अलग होती है. इनफैक्ट मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की किताब आधी लिखी गई है. अपने पार्टनर को चूज करने से पहले प्लीज उनके साथ कम एक 7 दिन के ट्रिप पे जाइएगा. जब आप एक इंसान के साथ में रहते हैं ना, उस इंसान की बहुत अलग साइड आपको दिखती है जो रोज मिलके नहीं दिखेगी. आई एग्री. क्योंकि आई थिंक उस 1 या 2 घंटे में जितना टाइम आप उनके साथ एक डेट पे स्पेंड करोगे, ऑब्वियसली यू गोना पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होंगे. यू वोंट इवन रियलाइज द लिटिल नुआंसेस दैट कैन गेट टू यू. Exactly. राइट. Exactly. Yeah, it's like simple things like वो ब्रश कैसे करते हैं. हाँ. Yeah. करता भी है या नहीं करता. वेरी फंडामेंटल. यस, एग्जैक्टली. वो कितनी देर में नहाते हैं और लग रहा होता है कि नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं. एग्जैक्टली. आदमियों को तो ये होता है ना, आर्मपिट अगर साफ हो गया तो नहा लिया हमने बस. वो भी बहुत कम. वो भी वो शेर मुंह नहीं धोते वाली मेंटालिटी अभी भी है ना. मामा मेंटालिटी. बट ऐसे जैसे एक लव लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही आई रेड दिस न्यू थिंग. इट्स कॉल्ड अपॉलॉजी लैंग्वेज. Okay. या हैव यू हर्ड ऑफ इट? No, but Are you the kind to? I can imagine what that would be. Please explain. I'd love to know. So I'm also like new on this. I haven't read a lot of material on this, but apparently there are different ways to apologize, right? एक तरीका होता है कि आपने गलती एक्सेप्ट करी और आपने अपोलोजाइज किया. दूसरा तरीका होता है आपने गलती एक्सेप्ट करी बट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, राइट, और आपने विश्वास दिलाया कि नहीं मैं वापस ये चीज़ नहीं करूँगा. तीसरा तरीका होता है कि आपने अपोलोजाइज किया, आपको बुरा लगा, एंड आप उसी वक्त यू डूइंग समथिंग टू मेक इट राइट. फॉर एग्जाम्पल, ओके लिसन, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इट वॉज माई फॉल्ट, लेट मी टेक यू आउट फॉर अ डिनर, to make up for it. So I think there are different apology languages. So what's yours? I think for me is accepting the apology, the mistake. Accepting the apology. वो और तो क्या होती है. गलती तो मेरी है, पर जब तुमने माफी मांग ही ली है तो मैं कबूल करता हूँ माफी. Accepting the mistake, apologizing, and then leaving it at that. Because the one remarkable thing about Ruchi is that she and I'm speaking more in her context. For friends, it'll be different. She moves on very, very quickly. She Really? doesn't linger on. She is incredible when it comes to this. कोई baggage नहीं है. अगर होता है तो मतलब 15 मिनट. टॉन्ट वॉन्ट भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. Like there's no तुमने 3.5 करोड़ साल पहले ये बोला था और आज मैं नहीं. Nothing at all. Like it's immensely simple to be in a relationship with her. Boy, did you luck out. Oh man, I swear I can like that book should be about her, and then everything will just sort itself out. So apologize and accept my mistake, and then I don't have to make up for it. I don't have to do anything special. And my only job then, which is a personal reminder to myself, is कि इस गलती को hopefully repeat मत करना, because that's the best form of apology. लेकिन वो कुछ ही time में visible होगी कि वो apologize जो तुमने किया था वो वाकई में तुम मीन करते थे कि नहीं. सो इन दिस मोमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्ट द पर्सन एंड से कि यू आर गोइंग टू मेक दैट स्टेप टू मेक इट वर्क. बट दैट्स इट. और आप क्या सजेस्ट करते हो कि आप इमीडिएटली अपोलोजाइज कर देना चाहिए या फिर? You know, it's a beautiful question because the answer seems very obvious कि कर देना चाहिए, लेकिन नहीं. जब आप कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ एक पार्टनर हमेशा अपोलोजाइज कर रहा होता है, एंड वो ना फिर वो शेर आया वाली कहानी हो जाती है, जहाँ यू डोंट इवन नो वेदर दैट सॉरी मीन्स एनीथिंग और नॉट.
So please don't be the one saying sorry all the time. Please don't be the one apologizing all the time. And certainly don't be the one apologizing the minute the mistake is made. क्योंकि what you're essentially saying is कि आपने तो प्रोसेस भी नहीं किया है ये किस ढंग से मुझे अफेक्ट किया. आपने ऐसा क्या बोला जो मुझे ट्रूली हर्ट किया. आपने तो सिर्फ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि आपकी गलती क्या थी उसके ऊपर अपोलोजाइज कर दिया. सो प्लीज ट्राई एंड गिव द अदर पर्सन स्पेस टू शेयर व्हाट इज इट दैट दे फेल्ट. एंड सम पीपल आर नॉट ओके विद दैट. तो अगर हम पूछते हैं ना कि तुम ना आज चुप चुप सी हो, कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ, बताओ ना, एंड यू लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं बताओ ना, चेप हो जाता, बताओ ना, नहीं बताना. गिव इट स्पेस, बिकॉज when you truly make them feel comfortable, वो बताएंगे. Which is why the body language is even exhibiting the need कि I am not my normal self. Yeah. Otherwise वो body language दिखाती भी नहीं. बहुत अलग सा एक नकाब आ जाता जहाँ मैं एकदम खुश हूँ, एकदम बिल्कुल friendly, chirpy, bubbly and all of that stuff. But the body language is showing because she wants to say something. Yeah. She's communicating. Exactly. So don't force her to say it your way. When you do that, that's when you understand कि क्या वाकई में हुआ है. Is it something that you did? Is it something that someone else did? Is it just you bearing the brunt of some other thing that happened? And then it's quite possible you wouldn't have to apologize, but to just listen. It is quite possible you wouldn't have to apologize, but fix. And it's possible you have to apologize, in which case you do. Right. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम हर बात पे माफ़ी मांग लो जब तुम्हारी गलती भी नहीं है और तुम्हें बोला भी गया था या एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि तुमसे माफ़ी चाहिए. राइट. पता है जब मैं और मेरे बॉस डिस्कस कर रहे थे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, सो व्हेन वी वर राइटिंग डाउन सम थिंग्स फॉर दिस लव एंड रिलेशनशिप बकेट दैट वी हैड, आई रोट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट मेड हिम लाफ अ लॉट, एंड दैट क्वेश्चन वाज, एंड आई हैव रिटन इट हियर, कि where are the good men, Ankur? And you can change it and you can say where are the good women, because Sure. honestly at this point मतलब ये जो आपकी लाइफ स्टोरी है और लव स्टोरी है वो तो भूल जाओ, वो तो इट्स लाइक अ फेरी टेल, राइट? कहाँ मिलते हैं लोग, कहाँ ढूंढने जाएं अच्छे डिसेंट डेटिंग प्रोस्पेक्ट्स? एंड प्लीज डोंट से डेटिंग एप्स. नहीं, of course नहीं. Dating apps are a disaster for society in general. It over-indexes on just one thing, which is physical attraction, which will be the worst way to judge someone. Because I often say this, the reason why relationships don't work is because it turned out that the mind was uglier than the face. And that's simply it. Like, कितने ही रिश्ते हैं जो बोला गया यार ये तो काफ़ी भद्दा सा इंसान निकला, इसके like दांत काफ़ी पीले ही हैं. Like, nobody said that. It's just like ये इंसान ही गंदा है, ये इंसान ही बकवास है, इसकी सोच ही घटिया है. And that same thing happens for men as well. Like she just turned out to be someone that I didn't recognize. So it's almost always what's here, not what's here. So ये over-indexing on dating apps is wrong. But I think the broader question, where are the good men and the good women? The truth is that they're not visible because they're not the ones who will ever make the noise. The same thing will be, because I come from that field, is where are the good businesses? The good businesses are never the ones that are written about in the newspapers. The good businesses are never the ones that are winning the Fortune 40 under 40 or the Forbes 30 under 30. The good businesses are not the ones that are coming on Shark Tank. The good businesses are not the ones that are receiving all the awards and so on. The good business is the one where you don't even know. वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर रहे हैं, उनके पास शानदार गाड़ियाँ भी हैं, बहुत अच्छे से ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन अगर आप उनको सड़क पे मिलेंगे आपको पता भी नहीं होगा कि ये इतना खूबसूरत सा एक बिजनेस बना रहे हैं. एंड इट्स द सेम थिंग. द गुड मैन एंड द गुड वुमेन may not be the most attractive, certainly will not be the ones that draw the most attention, will be what we call now the nice girl next door, the mama's boy. Yeah. All the branding that we do to classify them into something which is not really cool are the ones who ultimately turned out to be the sane ones, the ones who actually had their shit figured, who maybe were not the coolest, maybe not the ones who were the most fun at parties, maybe not the backbenchers, not the backbenchers, not the ones who had their school में आते ही tie untie कर दी थी और shirt
बाहर निकली हुई है पैंट से एंड ऑल ऑफ दैट really cool macho imagery that we all have, but they were like, you know, for lack of better words, the gissu, the padaku, the ones who were just told do it by the first principles and so on. Yeah. And the same for women as well, like the ones that were like ye to auntie hai, ye to behan ji hai. And the reason why they more often than not are the, in my opinion, the better choices is because they have been told, raised, and observed that you don't have to do all of these things to win at life. So maybe they come from parents who have worked really hard to win at life. Maybe they come from a parentage or a family where they have struggled to make it really hard in life, win at life. Maybe they come from a background where they've seen their brothers and sisters work really hard to win at the game of life. And they're like, I don't need to then dress a certain way, look a certain way, speak a certain way to be that person. Not to say that those who do it are always wrong. Yeah. But you almost always will find that there is something that people are trying to hide if they put up a mask. Right. And those who don't put up a mask most likely have nothing to hide. Yeah. And they go a longer way. And they most likely go a longer way because in the end, relationships and particularly a love relationship will almost always be about कि क्या ये इंसान मेरी ज़िंदगी as I said बेहतर बनाता है कि नहीं. And वही इंसान ज़िंदगी बेहतर बना सकता है जो खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाना जानता है. Right. You know, like looking at you, you're 44, you're obviously in great shape, right? And I think you talk about it also. I think आपके लिए fitness एक बहुत important theme है आपकी life में, right? And on a similar note, I came across another study and it was very interesting. It said that data suggests that in 5 years, a fit body will be rarer than a Rolex. Yeah, that's so true. You know, I was studying something there which blew my mind. Apparently, there are only 1% men in the world that have six-pack abs. Which, of course, makes for a huge number because 1% over 3.5 billion people is big enough. But it's ridiculous, it's just 1%. Yeah. And I'm not saying that six-pack abs is the measure of fitness alone, but it is certainly a measure of discipline. It is certainly a measure of tenacity. It's certainly a measure of how much you're willing to put in. And you're so right. हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ getting a Rolex is easier, cheaper. No, it's funny. On my way to this podcast, I tweeted that and this was particularly for men, the beast in your life should be you, not your car. Because there's so many people who are unhealthy AF, who will like, bro, BMW, bro, Roadster, bro, ye bike, bro, ye wo वगैरह वगैरह. Like, look at that fucking beast. I'm like, dude, that shouldn't be the beast in your life. You should be the beast in your life. You should be the one when you stand in front of the mirror, be like, I fucking own my life. And I really feel this because I think a very important realization I had is how you feel when you look at yourself in the mirror is how you think the world feels when they look at you. जो भी आप महसूस करते हैं जब आप खुद को आईने में देखते हैं, आपको लगता है कि लोग वही चीज़ महसूस करते हैं जब वो आपको देखते हैं. तो जब तक आपका नज़रिया आपकी तरफ नहीं बदलने वाला, दुनिया का नज़रिया आपकी सोच में आपकी तरफ नहीं बदलेगा. That is so true. And that is why I love someone like a Shah Rukh Khan. Like I love him. A reporter once asked him कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप last of the kings हैं, no, superstar हैं, ये rock star हैं, the biggest star in the world हैं. He's like क्योंकि अगर मुझे ये विश्वास नहीं होगा तो किसी और इंसान को ये विश्वास नहीं होगा. And that's it. It's as simple as that. Nice. It's just as simple as that. No Ferrari owners were harmed during the making of this podcast. वहाँ से तो शायद आपको sponsorship नहीं मिलने वाली. So thank you Mensa for all the work that you have done. We love you. Oh damn. But you know, आपकी हमेशा से like have you always been and felt this confidence? Because you know बहुत सारे young लोगों के लिए just to be able to feel confident in their own skin is a challenge. तो उन लोगों के लिए कोई tips हैं कि how do you feel confident in a public setting?
let me start with the first half. Did I always feel this way? No, of course not. I don't think anybody felt confident the day they were born and like, I've arrived and I'm absolutely I think the king Andrew or the Tate queen. did. Andrew Tate. I would love to speak to his mom one day and be like, no, कैसा था ये बचपन में? कैसा? Because he has so many stories, like, but those stories are mostly with his dad, and I can see why his dad shaped him up so meaningfully. But I'd love to speak to his mom one day. Anyway, that's a great example. Both the Tate brothers, by the way. The reality is, we always know what we have to work on. We're just scared of doing that work. If you are not confident, whether because of how you look, how you speak, how you dress, all of that is solvable. All of that is solvable. You can actually put in the work to get fit, to learn how to speak confidently, effectively, to dress well. Nothing to do with money, nothing to do with privilege, nothing to do with access, nothing to do with exposure, all to do with the willingness. And ये आज की दुनिया में true है. 1980s, 1990s अगर मुझे अंग्रेजी सीखनी होती, कोई जरिया नहीं था. Rapitex English Speaking Course सिर्फ वही एक किताब थी जो कपिल देव ने यूज़ कर रही थी और पूरी दुनिया यूज़ कर रही थी, क्योंकि वही एक जरिया था अंग्रेजी सीखने का. आज 100 करोड़ YouTube चैनल होंगे जो आपको अंग्रेजी सिखा सकते हैं, स्पेनिश सिखा सकते हैं, जर्मन सिखा सकते हैं, जो सीखना है सीखो. तो जब मैं अपने कोर्सेज रन करता हूँ वेब विच इज माई स्टार्टअप एंड वी रन अ कोर्स ऑन कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वी गेट रियली स्कैर्ड इन पब्लिक सेटिंग्स, वी गेट स्कैर्ड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड लाइक देखो समझो कि कोई भी माँ के पेट से पब्लिक स्पीकर नहीं बन के आया था. सब ने पब्लिक स्पीकिंग करके ही पब्लिक स्पीकिंग सीखी है. तो जो इफेक्टिव कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर है वो इसीलिए है क्योंकि उसने शुरुआत में वो मेहनत कर ली थी जहाँ उसको डर लगता था, लेकिन वो तब भी स्टेज पे जाते थे, एंड उसी डर से वो धीरे धीरे जीत कर आज यहाँ पहुँचे हैं. एंड वही आपको भी करना पड़ेगा, वही हर एक इंसान को करना पड़ेगा. बट इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट इन दैट एफर्ट, यू विल ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज. You'll always have an excuse. यार ठंड कितनी हो गई है, कौन जाएगा अभी जिम, अभी कितना ही हो गया है, विंटर्स में, समर्स में शुरू करेंगे, फिर समर में आता है अरे गर्मी, रूह अफ़ज़ा पी लेते तो बड़ा मज़ा आ जाता, एक ठंडा ठंडा नींबू पानी चीनी डाल के. All of those will of course be the more easy choices to make. But the hard choice is what you have to do. So whenever I get asked this question कि confident कैसे बनूं, like मुझे ये बता दो कि तुम्हें क्या नहीं पता है तुम्हें करना है कॉन्फिडेंट बनने के लिए. कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे सामने है ही नहीं, तुम्हारे जहन में ही नहीं है, तुम्हारे पूरे वजूद में ही तुमने कभी इनकाउंटर ही नहीं किया उस चीज़ को. एंड नहीं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? एंड द आंसर इज इट्स इंटेंसली हार्ड. इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ नॉट ईजी. बोलते हैं ना, द ओनली वे आउट इज थ्रू. यू हैव टू गो थ्रू. एब्सोल्युटली, द ओनली वे आउट इज थ्रू. यू नो, अभी हमने ब्रीफली एक टॉपिक टच किया था मनी के ऊपर, राइट, एंड व्हाट मनी मीन्स. ऑल्सो I'll narrate an incident that recently happened in our organization, right? I think कोई accounting error हुआ था जिसकी वजह से अलग लोगों की सैलरी अलग लोगों को चली गई, राइट? सो आई वॉज क्रेडिटेड समबडी एल्सेस सैलरी, समबडी गॉट माई सैलरी. सो इस पूरे प्रोसेस में सबको सैलरी पता चल गई, राइट? बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किसकी सैलरी आपको मिली है. आपको बस ये पता चल गया किसी और की नाम आया कि डियर मिस्टर व्हाटएवर आपकी सैलरी आपके यहाँ पे क्रेडिट हो गई है. एंड दिस वाज लाइक बिग. आई वाज मतलब मेरे को तो जिसकी पता चली मेरे को था मेरी किसको पता चल गई है, क्यों पता चल गई है, राइट? बिकॉज द ट्रांसपेरेंसी, it's uncomfortable, right? Money, being transparent to your colleagues about it makes you uncomfortable. I'm sure कि आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा because you're so transparent about, you know, money. First of all, how? आपको नहीं feel होता कि what is this? नहीं, क्योंकि I think the difference is कि 44 साल और 24 साल के अंकुर में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है. अब I'm very very comfortable, I'm very self-assured. मुझे किसी को कोई बताना नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ, कोई जजमेंट का इतना ज़्यादा डर नहीं है. सो देन इट्स लाइक आई जेन्युइनली वांट टू शेयर, नॉट टू टॉम अबाउट कि देखो मैं कितना कूल हूँ और मेरे पास कितने करोड़ों पैसे हैं, ये सब वगैरह. टू truly inspire people कि if I can do it at the age of 40, just completely reinvent my life, then you can do it at 20 as well and 30 as well, and hopefully this will be enough for you to take that first step. But as a concept, do you think that employees should know salaries of their peers? I have a very very hard take on this, and my hard take is yes, they should. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबको सबकी सैलरी पता है.
इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप भी जाके चेक कर सकते हैं. सो यू विल नो हाउ मच आई अर्न, हाउ मच माई टीम मेंबर्स अर्न एंड सो ऑन. एंड द रीज़न इज आई ऑफन फील कि जहाँ भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आने लगती है, मतलब किसी को कुछ ज़्यादा पता है, किसी को कुछ कम पता है, एक पावर इक्वेशन बन जाती है. तो ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में लोग सीनियर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है. बट ऐसा क्यों होना चाहिए? आपको आपकी अहमियत सिर्फ आपकी काबिलियत पे मिलनी चाहिए, आप क्या जानते हैं उसकी वजह से नहीं. तो मेरा एज अ फाउंडर एक ही प्रिंसिपल रहा है, कट ऑल इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. इंफॉर्मेशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, हर एक इंसान को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अगर वो जानना चाहते हैं. सो कॉम्पनसेशन इज द बिगेस्ट चिक वाला एरिया. अग्री. HR पूरा कितनी फाइट मारता है कि खबरदार किसी को पता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कर लेंगे. एंड दैट्स लार्जली बिकॉज आई फील कंपनीज डू अ पुअर जॉब ऑफ पेइंग पीपल व्हाट दे शुड पे. तो आपको X मिलता है, फिर आप बोलेंगे अच्छा मुझे ना एक दूसरी ऑफर मिल गई है 2X की, तो मैं तो निकली. तो बॉस बोलेंगे नहीं 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 तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ज़रूरी हो, रह जाओ, आपकी हम सैलरी मैच कर देंगे. तो लाइक ठीक है, ये तो जानी जगह है, यहीं अगर 2X मिल जाए तो बहुत बढ़िया. लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया. आपको 2X क्यों मिले? क्योंकि कोई इंसान जो शायद 5 साल से काम कर रहा था वो 1.5X पे ही है, या वो अभी भी उतने पे नहीं है. तो क्या उसको भी कोई नौकरी मिलनी पड़ेगी तब वो जाके वो अपनी डिजर्व जो है वो नेगोशिएट करेंगे. सो इट बेसिकली क्रिएट्स chaos, and to hide that chaos companies want employees to hide their salaries. We don't have that. हमारे यहाँ एक बहुत simple approach है of why you're paid what you're paid. It's a benchmark exercise जहाँ आपकी fixed component is determined by market standards, आपका variable is determined by your performance. सबकी performance और सबके variable and fixed pay सबके पास हैं, उनको पता है कि इसको क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, and that's it. We are simply then paying by that. तो कभी कोई जिक्र नहीं होता है कि इसको ज़्यादा क्यों मिलता है, इसको कम मिलता है, because it is transparent why we are paying everyone what we are paying, not what we are paying. वो तो एक outcome है. इनपुट ही क्या है टू डिटरमिन कि इनको कितना मिलना चाहिए. आपने वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ही हटा दिया मिक्स से. Exactly. Right. Okay. You know, I recently read this statement, and Palki Sharma made this statement in one of her videos where she said that Gen Z is widely considered an employer's nightmare. What are your thoughts? No, I think that is extremely unfair because that's passing the responsibility onto something that you don't want to take on your own. Gen Z समझना बहुत ज़रूरी है. एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहाँ हर एक चीज़ जब उन्होंने चाही उनको मिल गई. उनको किताबें चाहिए, क्लिक. उनको कपड़े चाहिए, क्लिक. उनको कैब चाहिए, क्लिक. उनको ग्रोसरी चाहिए 5 मिनट में. उनको गाने चाहिए, क्लिक. मूवीज़ चाहिए, क्लिक. एवरीथिंग एट द स्पीड ऑफ थॉट डिलीवर्ड. जो उनके मैनेजर्स हैं, मिलेनियल्स हैं, बूमर्स हैं, वो एक ऐसी दुनिया में पले बड़े जहाँ हर चीज़ के लिए वेट करना था. तो आप दूध लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हो, आप फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हो, आप एक घड़ी खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हो, आप एग्ज़ाम की लाइन में, टैक्स पे करने की लाइन में, बिल पे करने की लाइन में, आप सिर्फ लाइनों में खड़े हुए थे. एंड हर चीज़ के लिए आपको वेट करनी थी. तो इसलिए नहीं क्योंकि आप ज़्यादा दिग्गज हैं, आप में बड़े गुण हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप पेशेंट हैं, नहीं. आप बिना चॉइस के ज़बरदस्ती एक ऐसी दुनिया में पले बड़े जहाँ आपके पास और कोई ज़रिया नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, आपको वेट ही करना था. सो नाउ सडनली टू से दैट दिस जनरेशन इज इम्पेशेंट, दैट दे वांट थिंग्स टुमारो, दैट दे जॉइन अ जॉब एंड देयर लाइक कि हमें इम्पैक्ट अभी के अभी क्रिएट करना है, इज़ व्हाट दे have been raised on. It is what they have been told. The parents are to be blamed that they had access of all of that and they spoiled the child thinking कि जो भी उनको चाहिए होगा वो उनके मन मर्जी उनको उसी समय मिल जाएगा. Now as a company, as a manager, your job is to teach this generation that good things take time. कोई भी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में जो वाकई में अहमियत रखती है, प्यार, एक अच्छा करियर, खुद की समझ, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके वक्त से आती हैं, रातों रात नहीं मिलने वाली. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
So if you want to run away from your responsibility, it's very easy to blame a generation and say कि Gen Z तो बिल्कुल बेकार है, वो तो बहुत entitled हैं, उनको तो सब कुछ चाहिए होती हैं, उनको work from home भी करना है और उनको पैसे भी बहुत चाहिए, उनको work life balance भी चाहिए, उनको impact भी कल ही create करना है, promotion परसों चाहिए थी. But the truth is that we are the ones that created the world in which this was built. It's not that they were born this way. They were raised this way. So we bear the responsibility of making it right. Very powerful line. Yeah. So अभी आपने impatience की बात करी तो उससे मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में जो बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल है बट कोई वो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता है और वो स्ट्रगल है दैट हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं. सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? हमें पता है कि हमारे पास अभी भी वक्त है. सिंपल. प्रोक्रेस्टिनेशन लोगों को लगता है लेजीनेस की वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, स्किल गैप है, करना ही नहीं आता, डर लग रहा है वगैरह वगैरह. ऑल ऑफ दोज आर ऑल्सो वैलिड बट द बिगेस्ट रीजन इज सिंपली द फैक्ट कि आपको पता है आपके पास अभी भी वक्त है. सो कोई चीज़ अगर फ्राइडे को ड्यू है एंड आप मंडे को बैठे हैं, योर इनेट सेल्फ विल टेल यू कि अभी इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी वक्त है. इट्स द सेम रीज़न कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 साल बाद आपको ना मैराथन भागना होगा, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू स्टार्ट रनिंग टुडे बिकॉज ये अभी भी वक्त है. 1 साल है. तो द वे टू डील विथ प्रोक्रेस्टिनेशन इज टू नॉट गिव योर सेल्फ दैट टाइम एंड द वे टू डू दैट इज, अगर आपके पास एक एंड टारगेट है विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय समवन एल्स, break that end target to create smaller targets for yourself which are midway. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि तुम्हें अगले साल मैराथन भागना ही भागना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है, बट यू इंटरनली गो ओके, मेरा टारगेट है कि अगले 3 महीने मुझे 5 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच भागना है, फिर अगले 6 महीने मुझे 15 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच भागना है, विच मीन्स मुझे अगले 1 महीने 2 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच भागना है एंड मुझे इस हफ्ते कम से कम 1 किलोमीटर हर रोज भागना है. दैट इज व्हेन यू ब्रेक द लार्जर गोल इनटू स्मॉलर गोल्स, असाइन अ टारगेट एंड गेट गोइंग. अब लोग उसमें भी बोलते हैं यार टारगेट तो अपने दिमाग में डाल दिया, बट बोलना तो आसान है कि मैं 1 किलोमीटर भागूंगी, पर भागूंगी थोड़ी. दैट्स व्हेन यू ब्रिंग द सेकेंड लेयर विच इज अकाउंटेबिलिटी, कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डील वेरी वेल विद एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी. तो ये होता है ना, बिल्डिंग इन पब्लिक आजकल बड़ा कूल है कि मैं जाके इंस्टाग्राम पे बोल दूंगी कि अनाउंस कर दूंगी 30 डे चैलेंज. यस एग्जैक्टली. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एसेंशियली मेकिंग द वर्ल्ड अकाउंटेबल, सॉरी योरसेल्फ अकाउंटेबल टू द वर्ल्ड. यू आर सेइंग कि अब तो मैं ही शर्मिंदा हो जाऊंगी ना अगर मैंने ये नहीं किया. मतलब किस मुंह से मैं दुनिया को बोलूंगी कि मैं 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट ही नहीं किया. सो इट सडनली डज दैट. फ्रेंड्स आर ग्रेट वेज ऑफ मेकिंग accountability partners. Your parents could be great ways of making accountability partners because very few people are so self-driven that they themselves can act as the accountability partner. And then the third is progress. If it's a long drawn thing जहाँ procrastination के chances बहुत ज़्यादा हैं, it's very important कि आप अपने progress को document करते रहें क्योंकि the feeling of progress makes us feel very powerful. हमें, this is the biggest realization of my life, as a human हमें उतनी खुशी नहीं होती है जब हम किसी मकसद को पहुंच के हासिल करते हैं जितनी खुशी हमें होती है उस मकसद पे काम करते हुए. जब हम एक गोल पे पहुंचते हैं उस पॉइंट पे जितनी खुशी होती है उससे कई ज़्यादा खुशी होती है उस गोल की तरफ काम करते हुए. दैट इज़ वॉट यू हैव टू ब्रिंग इन योर लाइफ. अ प्रोग्रेस ट्रैकर इज़ द श्योरेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. कि मैंने इस महीने 1 किलोमीटर भागा, अगले महीने मेरे 5 भाग रही हूँ, उसके अगले महीने में 15 भाग रही हूँ. दैट विल गिव यू द मोटिवेशन to not ever procrastinate. Right. And पता है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल दे से दैट द पर्पस ऑफ हैविंग अ टू डू लिस्ट इज नॉट हैविंग अ पीस ऑफ पेपर वेयर यू राइट डाउन थिंग्स. इट्स दैट टिक. द मोमेंट जब आपका एक टास्क हो जाता है और आप वो टिक करते हो, वो जो साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, दैट ड्राइव्स एक्शन the next time for the next thing on the list. Absolutely. So you're absolutely right in this. So and
it's been lovely talking to you. Likewise. And we've learned so much from you. And you know, a lot of young people watch our channel. So do you have, you know, some tips, some advice for those young people out there for a better shot at life and building an epic career? I would simply say one thing कि अपने 20s में ना दुनिया आपको हमेशा बोलती रहेगी कि जल्दी से सेटल हो जाओ, जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लो, सेटल हो जाओ, नौकरी ले लो, सेटल हो जाओ, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बच्चे कर लो, सेटल हो जाओ, घर खरीद लो, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ. एंड आई वुड से कि 20s का जो डेकेड है दैट हैज़ टू बी अबाउट एक्सप्लोरिंग इंस्टेड ऑफ सेटलिंग. यू डोंट नो हु यू आर, यू स्टिल फिगिंग इट आउट. दुनिया बहुत बदल चुकी है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप सेटल मत होइए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर 2 महीने रिश्ते बदलते रहेंगे, जॉब बदलते रहेंगे, शहर बदलते रहेंगे, देश बदलते रहेंगे. इसका मतलब ये है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु इज़ जेन्युइनली क्यूरियस, ये देखिए कि दुनिया में क्या क्या है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको आप चख सकते हैं, डेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. बिकॉज दैट विल देन टेल यू वॉट इज़ इट दैट यू कुड बी डूइंग इन लाइफ. एंड अगर वो 30 तक आपको मिल गया, जो कि मिल के ही रहेगा, बिकॉज दैट जर्नी विल नॉट टेक लॉन्गर देन दैट, then you spend your entire 30s in just making that the absolute supreme craft in your life. And अगर वो कर दिया, then by the time you're 40, या तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, या आपका काम इतना खुशनुमा होगा कि वो काम ही नहीं लगेगा. And that's when you won in life. And that's how I would do it. Yes, and I think you won at this conversation with us. Thank you so much. Thank you so much. Lovely. Lovely talking to you.